Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about concept of double sideband suppressed carrier modulation. We have also discussed the concept of single sideband modulation, and we concluded our lecture with the advantages and disadvantages of SSB modulation. Now today we will discuss about double sideband suppressed carrier modulation, and we will also analyze the double sideband suppressed carrier mathematically. We will also discuss about power requirement of DSB-SC and bandwidth requirement of DSB-SC signal. So today what we will discuss? We will discuss about double sideband suppressed carrier modulation. Okay, mathematical analysis of the same. We will discuss about the mathematical analysis of DSB-SC. Okay, we will discuss about the power requirement of DSB-SC. Okay, power requirement of DSB-SC and bandwidth requirement to transmit DSB-SC signal, that we will discuss in today's lecture. So let's start with the DSB-SC mathematical analysis. Power requirement and bandwidth requirement we will discuss in today's class. So first of all, what is DSB-SC? So this is the short form of the modulation. So DSB-SC stands for double sideband suppressed carrier modulation. Double sideband suppressed carrier मॉड्यूलेशन. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमारा जो स्टैंडर्ड एएम है, स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, वो DSB-FC है. कौन सा है बच्चों? DSB-FC. DSB-FC का मतलब डबल साइडबैंड फुल कैरियर सिस्टम. मतलब जो हमारा एएम है उसमें दो साइडबैंड रहेंगे, एक अपर साइडबैंड, दूसरा लोअर साइडबैंड, एंड वी हैव अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एज वेल. अनमॉड्यूलेटेड कैरियर भी होगा एट फ्रीक्वेंसी FC, and upper sideband at the frequency FC minus FM and lower sideband at the frequency FC minus FM. Okay, now अब होता क्या है कि इसमें जो कैरियर है वो कैसा है? अनमॉड्यूलेटेड है. कैसा है बच्चों? अनमॉड्यूलेटेड. एंड अनमॉड्यूलेटेड कैरियर डू नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अनमॉड्यूलेटेड कैरियर डू नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन. अगर मैं इसको ट्रांसमिट करूं या ना करूं, इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. मतलब अगर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे तो भी कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होगी रिसीवर तक. अगर इसको हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो भी कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होने वाली है. लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसमिट करूंगा तो मुझे ज्यादा पावर यूज होगा. एएम ट्रांसमिशन में ज्यादा पावर यूज होगा. अगर मैं इसको ट्रांसमिट नहीं करूंगा देन इट विल रिजल्ट इन द पावर सेविंग. So in order to save the power, what we are doing? We are not transmitting this component carrier. Okay, we will suppress this carrier by using some signal processing technique. Okay, and if we suppress this carrier, then resultant modulation is known as a DSB-SC. That is a double sideband suppressed carrier modulation. So main advantage of this DSB-SC is the power saving. Okay, if we are not transmitting carrier, then power will be saved. Okay, so you can see this is a concept of DSB-SC. So if we transmit the double sideband full carrier signal, then it is a power inefficient method, the transmission inefficient method, and
if we suppress the carrier then 2/3 power is being saved. ओके, अगर मैं DSB FC भेजूंगा तो मुझे 2/3 पावर है वो ज्यादा वेस्ट होगा. ओके, बिकॉज वो कोई कैरी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है. अगर मैं कैरियर नहीं भेजूंगा तो कितना पावर सेव होगा? 2/3 पावर ऑफ द टोटल विल बी सेव्ड. टोटल पावर का 2/3 पावर जो कैरियर कैरी करता है वो सेव होगा. ओके, तो यहाँ पे ये मॉड्यूलेशन स्कीम आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो साइड बैंड है, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, एंड देर इज अ नो कैरियर. कैरियर इज सप्रेस्ड एट द फ्रीक्वेंसी FC. सो व्हाट वी हैव इन द DSB-SC? जस्ट वी हैव टू साइड बैंड्स, only two frequency component. One is at the frequency FC plus FM, another at the frequency FC minus FM. Okay, समझ में आ गया? Done. Good. Now let's do the mathematical analysis of this DSB-SC modulation. So today we will do the mathematical analysis or mathematical expression. We will derive the mathematical expression of the DSB-SC. Okay. Now, so to derive the mathematical expression of DSB-SC modulation, first we will consider our two input signal of the modulator. They are the modulating signal and carrier signal. तो हमें पता है कि कोई भी मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल चाहिए और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब इंफॉर्मेशन सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल. सो बेसिकली द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज मैथमेटिकली गिवन एज m of t is equal to am cos 2 pi fmt. आप उसको साइनोसोइडल भी ले सकते हो, मतलब साइन वेव भी कंसीडर कर सकते हो. यहाँ पे मैंने कोसाइन किया है. ओके, यहाँ पे कोसाइन कंसीडर किया, लेकिन हम उसको am साइन 2 pi fmt भी ले सकते हैं. इसमें कोई इश्यू नहीं है. सिग्नल विल बी ऑफ साइन और कोसाइन फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस पर्पज. ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने कोसाइन सिग्नल कंसीडर किया. सो अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज द m of t is equal to am cos 2 pi fmt, where am is nothing but it is the peak amplitude of the modulating signal. This is the peak amplitude of the modulating signal. fm is the frequency of the modulating signal. So this represents the frequency of the modulating signal. Similarly, the second signal, there is a carrier signal. Okay, and carrier signal is given as C of t is equal to AC cos 2 pi fct, where AC is the peak amplitude of the carrier signal. So AC is the peak amplitude of the carrier signal, and fc is the carrier frequency. Okay, and one more important thing that I would like to remind you, that is in modulation, carrier frequency fc should always is much greater than modulating signal frequency. Okay, carrier frequency modulating frequency से ज्यादा होनी चाहिए. Now one important thing I would like to say, that DSB-SC mathematically the double sideband suppressed carrier wave is considered as a product of modulating and carrier signal. Very important. Okay, so DSB-SC signal, if I draw the schematic of it, then DSB-SC signal can be considered as product of modulating signal and carrier signal. तो सपोज मान लो कि ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है और ये मल्टीप्लायर है. सपोज ये जो क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया वो मल्टीप्लायर है. इसका एक इनपुट कौन सा होगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, दैट इज m of t, और दूसरा कौन सा होगा? कैरियर सिग्नल होगा, दैट इज c of t, और इसका जो आउटपुट मिलेगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर, एंड दिस इज कंसीडर्ड एज अ DSB-SC सिग्नल मैथमेटिकली. ये मेरा DSB-SC सिग्नल मिलेगा मुझे. दिस इज माय DSB-SC सिग्नल, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल. So simply, very simple concept is there, that if you multiply modulating signal and carrier signal, the resultant signal will be double sideband suppressed carrier signal. मतलब अगर मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली कैरियर सिग्नल सप्रेस हो जाएगा.
आउटपुट में कैरियर सिग्नल नहीं रहेगा, सिर्फ हमें डबल दो साइड बैंड मिलेंगे, एक साइड बैंड एट द फ्रीक्वेंसी fc प्लस fm दैट इज अपर साइड बैंड, और दूसरा जो मिलेगा साइड बैंड एट द फ्रीक्वेंसी fc माइनस fm दैट इज नोन एज अ लोअर साइड बैंड। अब हम क्या करेंगे, ये चीज को प्रूव करेंगे, ये चीज को जो मैंने स्कीमेटिकली आपको बताया, ये चीज को हम प्रूव करेंगे। हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे मल्टीप्लाई करके कि जो रिजल्टेंट फाइनल आउटपुट जो मिलेगा ये मल्टीप्लीकेशन का, दैट विल बी द डीएसबी एससी सिग्नल। तो आप देख सकते हो मैथमेटिकली दिस एस ऑफ टी दैट इज माय डीएसबी एससी सिग्नल, ओके, मॉड्यूलेटेड सिग्नल डीएसबी एससी सिग्नल, ओके, विच इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, am cos 2 pi fmt, तो m ऑफ t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, am cos 2 pi fmt लिख सकते हैं, और c ऑफ t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ac cos 2 pi fct। तो ये दोनों की जगह पे m ऑफ t की जगह पे am cos 2 pi fmt लिख दो, ओके, एंड c ऑफ t की जगह पे ac cos 2 pi fct लिख दो, ओके। तो हमें रिजल्टेंट हमें थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, am ac cos 2 pi fmt इंटू cos 2 pi fct, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये दो सिग्नल का प्रोडक्ट है, दैट इज am ac cos 2 pi fmt इंटू cos 2 pi fct, उसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, s ऑफ t इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 2am इंटू ac, ओके, मल्टीप्लाई किया, ओके, डिवाइड भी कर दूंगा मैं इसको, डिवाइडेड बाय 2 cos 2 pi fmt cos 2 pi fmt इंटू cos 2 pi fct इंटू cos 2 pi fct। अब आपको क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा कि हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया। तो बच्चों मुझे इसको ये जो कोसाइन टर्म्स है cos 2 pi fmt इंटू cos 2 pi fct, उसको मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, दैट इज 2cc। आई होप कि आपको ये पता होगा, 2 cos इंटू cos, 2 cos a इंटू cos b, तो बेसिकली ये कौन से फॉर्म में आ गया, 2 cos a इंटू cos b। और आपको मैथमेटिक्स से पता होगा कि 2 cos a इंटू cos b को हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन है, ओके, दैट इज 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है, एक ही जगह पे है, सपोज मान लो कि a इज इक्वल टू 2 pi fct, a इज इक्वल टू 2 pi fct सपोज कंसिडर करो, एंड b इज इक्वल टू क्या कंसिडर करें हम, b इज इक्वल टू 2 pi fmt कंसिडर करें हम, 2 pi fmt कंसिडर करें, तो यहाँ पे रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो 2 cos a इंटू cos b, ये तो हम उसको, ये मल्टीप्लायर है, कांस्टेंट है, सपोज मान लो am ac डिवाइडेड बाय 2, तो am ac डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर आ गया, और 2 cos a इंटू cos b को क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b, cos a प्लस b, a क्या है 2 pi fct, तो 2 pi fct प्लस b 2 pi fmt प्लस ये सेम चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, am ac डिवाइड बाय 2 cos 2 pi a माइनस b दैट इज 2 pi fc माइनस fm इंटू t, 2 pi मैंने कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिला देख सकते हो आप, s ऑफ t इज इक्वल टू क्या मिला, am ac बाय 2 cos 2 pi fc प्लस fm इंटू t प्लस am ac बाय 2 cos 2 pi fc माइनस fm इंटू t। तो ये मेरा डीएसबी एससी सिग्नल है, ये मेरा डीएसबी एससी सिग्नल है। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर मैं ये एक्सप्रेशन को हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो इसमें दो ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक एट द फ्रीक्वेंसी fc प्लस fm, ओके, एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है fc प्लस fm, और दूसरा कौन सा है fc माइनस fm। और ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका एम्पलीट्यूड है am ac बाई 2 और इसका एम्पलीट्यूड है am ac बाई 2। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करूं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो सपोज मान लो कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी fc है और fc फ्रीक्वेंसी पे कोई कंपोनेंट नहीं है, नहीं, लेकिन इसके हायर फ्रीक्वेंसी मतलब fc प्लस fm पे एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, fc प्लस fm पे एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, कौन सा है, जिसका एम्पलीट्यूड है am इंटू ac डिवाइडेड बाई 2
और दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लोअर फ्रीक्वेंसी दैट इज एफसी माइनस एफएम पे है, एफसी माइनस एफएम पे है, और जिसका एम्पलीट्यूड है एएम इंटू एसी बाय 2। ओके, अगर मैं इसकी बैंडविड्थ फाइंड करूं तो बैंडविड्थ क्या होगा, इसकी कोई भी सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अपर फ्रीक्वेंसी कौन सी, एफसी प्लस एफएम, लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी, एफसी माइनस एफएम। तो बैंडविड्थ इज नथिंग बट अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज एफसी प्लस एफएम माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस एफसी माइनस एफएम। तो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एफसी एफसी कैंसिल हो जाएगा और अब बचेगा क्या, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस एफएम, एंड दिस इज सिमिलर टू अवर स्टैंडर्ड एएम बैंडविड्थ। मतलब डीएसबी एससी सिग्नल की बैंडविड्थ डीएसबी एफसी सिग्नल की बैंडविड्थ के इक्वल है, ये कंक्लूजन हुआ। अगर आप याद करेंगे हमारा स्टैंडर्ड एएम जो है डीएसबी एफसी, उसमें भी बैंडविड्थ कितनी मिलती थी, ट्वाइस एफएम, दैट इज अ ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ में आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अगर हम ये आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये मॉड्यूलेटेड एएम है, ये डीएसबी एससी एएम है, तो एएम सिग्नल के आप ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में मिली। एक मिली एफसी प्लस एफएम, एक फ्रीक्वेंसी कौन सी मिली बच्चों, एफसी प्लस एफएम, और दूसरी कौन सी मिली, एफसी माइनस एफएम। और ओरिजिनल सिग्नल फ्रीक्वेंसीज कौन सी थी, ओरिजिनल कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी एफएम, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी एफएम, और दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, ओरिजिनल एफसी। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें एफसी और एफएम नहीं है, क्या है, कुछ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रही है। कौन कौन सी, एफसी और एफएम जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गेट्स चेंज्ड, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एफसी और एफएम नहीं है, लेकिन मॉड्यूलेटेड वेव में क्या है, एफसी प्लस एफएम है, एफसी माइनस एफएम है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इज अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन प्रोसेस। याद करो, मैंने मॉड्यूलेशन के एडवांटेज में भी बताया था, याद करो, रिकॉल करो, ये प्रूफ है, इसका प्रूफ है कि मॉड्यूलेशन इज अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन प्रोसेस, है ना। सिंपल बोल सकते हैं व्हाट इज मॉड्यूलेशन, तो इट इज अ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रोसेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। मॉड्यूलेशन इज अ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रोसेस। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट हो गई, देखो हमारी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफसी और एफएम थी उससे अभी फ्रीक्वेंसी कौन सी मिल रही है, एफसी प्लस एफएम और एफसी माइनस एफएम। तो बच्चों ये चीज दिमाग में फिट कर देनी है कि मॉड्यूलेशन, मोर स्पेसिफिकली एएम, यहाँ पे कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रोसेस है, वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रोसेस है। ओके, सो मॉड्यूलेशन इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो हमने क्या किया कि डीएसबीएससी का मैथमेटिकली फॉर्मूला डिराइव किया और उसका बैंडविड्थ भी फाइंड किया। बैंडविड्थ कितनी मिली, ट्वाइस एफएम। सो डीएसबी एससी सिग्नल एंड डीएसबी एफसी सिग्नल की दोनों की बैंडविड्थ सेम है। नाउ वी विल डू द पावर कैलकुलेशन ऑफ दिस डीएसबी एससी वेव। ओके बच्चों, तो हमें पता है, हमें टोटल पावर पता है कि जो डीएसबी एफसी सिग्नल है हमारा, डीएसबी एफसी सिग्नल अगर मैं रिकॉल करवाऊं आपको, डीएसबी एफसी मतलब हमारा स्टैंडर्ड एएम, डीएसबी एफसी का मतलब स्टैंडर्ड एएम, जो हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड एएम जो है हमारा, उसका पावर का फॉर्मूला क्या था, हमने डिराइव किया था पीटी इज इक्वल टू पीसी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ऐसा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। लेकिन ये किसका था, डीएसबी एफसी, पावर रिक्वायरमेंट इन डीएसबी एफसी। अब अगर मैं डीएसबी एससी की अगर पावर कैलकुलेट करे तो ये डीएसबी एससी का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हो कि डीएसबी एससी कंसिस्ट 2 कंपोनेंट्स, वन इज द अपर साइड बैंड at the frequency fc plus fm, another is the lower side band lsb at the frequency fc minus fm। तो टोटल पावर क्या होगा, टोटल डीएसबीएससी का क्या होगा, जितने कंपोनेंट है उनके सबके पावर का सम। तो यहाँ तो 2 ही कंपोनेंट है, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। सो टोटल पावर ऑफ डीएसबीएससी इज द पावर ऑफ द अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ द लोअर साइड बैंड। सिंपल है,
पावर ऑफ द अपर साइड बैंड, पावर ऑफ द लोअर साइड बैंड। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पता है तो अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना पावर मतलब डिसिपेट होगा, सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर, आरएमएस वोल्टेज स्क्वायर, दैट इज अ वी आरएमएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रेजिस्टेंस। ओके, यस और नो। बट यहाँ पे जो वोल्टेज लेवल है, यहाँ पे जो वोल्टेज ये जो वोल्टेज लेवल है वो वोल्टेज लेवल कौन सा है बच्चों, दिस वोल्टेज लेवल इज द पीक वैल्यू, दिस आर द पीक वैल्यूज, ये तो पीक वैल्यू है। लेकिन हमें पावर फाइंड करने के लिए कौन सा चाहिए, आरएमएस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पावर पीक वैल्यू से, वोल्टेज के पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसका क्या होता है, आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज वी आरएमएस इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाय रूट टू, Vm डिवाइडेड बाय रूट टू। Vm मतलब पीक वैल्यू, Vm मतलब पीक वैल्यू, सो Vm डिवाइड बाय रूट टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर अपर साइड बैंड का पावर फाइंड करूं, दैट इज अ पी यूएसबी, अपर साइड बैंड का अगर हम पावर फाइंड करें ये फॉर्मूला से, सो वी आरएमएस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज है, पीक वोल्टेज, दैट इज वीपी और वीएम, सपोज मान लो वीएम, जिसको मैं वीएम बोल दूं, तो वीएम कितना है, एम इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वीएम की जगह पे एम इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, वीएम की जगह पे एम ए सी डिवाइडेड बाई 2 और रूट 2 तो था ही, तो रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे पावर कितना मिलेगा, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। तो अपर साइड बैंड का पावर कितना मिला, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। सिमिलरली अगर लोअर साइड बैंड की बात करें तो उसका भी एम्पलीट्यूड, लोअर साइड बैंड का भी एम्पलीट्यूड अपर साइड बैंड के एम्पलीट्यूड के जितना ही है, सेम टू सेम है, तो उसका भी पावर सेम मिलेगा। सो दिस पावर इज नथिंग बट सेम एज द PLSB। तो अगर लोअर साइड बैंड का पावर हम कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, तो भी मुझे कितना मिलेगा, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। सो टोटल पावर कितना होगा बच्चों, टोटल पावर कितना होगा, ये दोनों का सम, तो टोटल पर ये बेसिकली लोअर साइड बैंड है PLSB, सॉरी PLSB। तो टोटल पावर कितना होगा, PLSB प्लस PUSB, दैट इज एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई AR प्लस एम स्क्वायर डी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 8r। तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। तो ये टोटल पावर मिला। और वो टोटल पावर कितना था DSB-FC का, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ये डिफरेंस है। दिस इज द पावर ऑफ DSB-SC and this is the power of DSB-FC। ओके, समझ में आ गया। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों, सो इन टूडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ DSB-SC wave। we have also discussed about the how to produce the DSB-SC wave। so DSB-SC is nothing but it is basically, if we multiply modulating signal and carrier signal, the resultant signal will be DSB-SC signal। so we have also proved mathematically that thing, that DSB-SC signal is the product of modulating signal and carrier signal। we have also discussed about the spectrum of DSB-SC, frequency spectrum of DSB-SC, and from the spectrum of DSB-SC we have also calculated the bandwidth and concluded that the bandwidth of DSB-SC is same as DSB-FC, and at last we have calculated the power requirement of DSB-SC, that is the power requirement is AM square AC square divided by 4R। okay, so this is a power requirement in DSB-SC। ओके, सो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने जितना भी डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन in our next video class। Thank you very much।